Okay, good morning, students. We have already studied about lightning and about electric charges. Now we ought to know what is the cause for lightning. Now, still it is not very clear. It is still under studies. Research is still going on. But what we have understood from the concept of electric charges, that we can explain the lightning in terms of the charges produced by rubbing. Charges produced by rubbing. Now, where is this rubbing occurring? Now, what happens is we have already learned that during development of the thunderstorm, the air currents move upward और जो water droplets होते हैं they move downward. अब इसमें ये जो movement है इसके कारण vigorous movement के कारण it can cause separation of charges. And ये process अभी तक it is not fully understood. But what we can conclude by whatever the studies have been done, that the positive charges collect near the upper edges of the clouds, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, and the negative charges accumulate near the lower edges of the cloud. ये जो cloud है तो अपर जो रीजन्स होते हैं, एजेस होती हैं, वहां पर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाती हैं और लोअर रीजन में नेगेटिव चार्जेस जो होती हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं. नाउ देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो, यहाँ पर भी एक्यूमुलेट हो रही हैं. अब एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, जब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्जेस, मतलब अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड या अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाता है, वेरी लार्ज इट बिकम्स, तो एयर, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इट इज अ पुअर कंडक्टर. इट becomes conductor. It is no longer able to hold so much of charge. It is not able to resist their flow. और ऐसे में क्या होता है, the negative and the positive charges meet. The negative and positive charges meet and there are streaks of bright light and sound produced. और यही streaks of light we see them as lightning. और इसी process को हम electric discharge कहते हैं. ठीक है, ये जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इट कैन अकर बिटवीन दो क्लाउड्स, बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ ऑल्सो. या तो दो क्लाउड्स के बीच में ही ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा या फिर क्लाउड्स एंड अर्थ के बीच में. तो ये दोनों फिनोमिनन कैन बी एक्सप्लेन्ड वेरी वेल विद दिस डायग्राम. So, but we know that we need not to be frightened by lightning now because we know the cause. लेकिन lightning जो है, it could strike and destroy life and property. Therefore, it is very necessary for us to take necessary precaution. और उनमें से एक precaution है lightning conductor. Lightning conductor जो है वो एक device है which is used to protect the buildings from the effect of lightning. ये एक metal rod होती है, as you can see in the figure. एक metal rod होती है that runs from the top of the building to the ground, नीचे ground के अंदर. अब होता क्या है कि ये एक मेटेलिक रॉड जो होती है वो टॉलर देन बिल्डिंग होती है, इसलिए इसका एक एक्सटेंड ऊपर, यूजुअली ये फोर्क्ड होती है, डिवाइडेड होती है इनटू टू पार्ट्स एंड इट इज यूजुअली फोर्क्ड एट द टॉप. ठीक है, एंड लोअर एंड जो होता है इसका ग्राउंड के अंदर है, यूजुअली अ कॉपर प्लेट. और व्हेनेवर देयर इज लाइटनिंग, जो चार्ज क्लाउड्स होते हैं वो होवर करते हैं ओवर द बिल्डिंग. व्हेन दीज क्लाउड्स पास ओवरहेड, जब बिल्डिंग के ऊपर से निकलते हैं तो दे कॉज इंडक्शन, और इंडक्शन बिटवीन देम एंड द पॉइंटेड एंड ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, उनके बीच में इंडक्शन होता है. और सिंस द लोअर रीजन ऑफ द क्लाउड्स जो होता है आर नेगेटिवली चार्ज, तो इससे लाइटनिंग कंडक्टर जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्रॉम क्लाउड्स विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर टू द ग्राउंड. ठीक है ना. So, अगर ये कंडक्टर नहीं होगा, the entire charge would pass through the building and cause it lot of damage or even set it on fire. इतना ज़्यादा होता है. तो ये lightning conductor बड़ी बड़ी buildings को और घरों को भी protect करता है from lightning. But there are other precautions also what need to be taken other than lightning conductor. If your house, inside the house को protect कर सकते हो, building को protect कर सकते हो using a lightning conductor. लेकिन बाकी के प्रिकॉशन, कुछ सेफ्टी रूल्स हमें हमेशा याद रखने चाहिए. ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म जो होता है, डू नॉट मूव इन ओपन स्पेसेस और इन ओपन व्हीकल्स. ऑलवेज लुक फॉर अ शेल्टर और बी इनसाइड अ बिल्डिंग.
अगर आप व्हीकल में हैं तो क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज. अगर आपको लेना ही है शेल्टर तो आप यू लुक फॉर अ शॉर्टर ट्री रादर देन अ टॉलर वन. इफ यू आर इन ओपन स्पेस, आप कभी ऐसी जगह पे ओपन स्पेस में जहाँ कोई शेल्टर नहीं है, तो स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज एंड पोल्स, बिकॉज ये दोनों के दोनों लाइटनिंग को या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं. एंड इवन अम्ब्रेला हैज अ मेटेलिक हेड ओवर, तो उसको भी हम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7. डू नॉट यूज दिस मेटेलिक umbrella also. Switch off unnecessary electrical devices like television during thunderstorm. Never stay inside water bodies like lakes, swimming pools. जब भी lightning thunderstorm हो रहा है, do not be inside water bodies. Always you should come out, because water is a good conductor of electricity. We have already studied. Avoid using mobile phones. अगर if you are outside the house, you can avoid using mobile phones. These are all the precautions which you can take and protect yourself from lightning. Now the second one, natural phenomenon what we have to study is earthquake. All of us at one time or the other in our life have experienced an earthquake, and maybe a mild tremor of the earthquake for a very short period of time. एक बार या दो बार हो सकता है. I have experienced many number of times. तो earthquake जो होता है, it is sudden shaking of the surface of the earth which lasts for a very short period of time. बहुत ही short period के लिए होता है. It is caused by disturbance deep inside the earth's surface, earth's crust. All right, and it can cause huge damage to life and property. Earthquake can even cause floods, landslides, and tsunamis. Now, अगर हमने earthquake को समझना है, how is it caused? We need to look at the structure of the earth. You have already studied this in geography also. Earth के तीन main layers है, that is core, then mantle, and then crust. Core में दो part, outer and inner core. जो surface of the earth जहाँ हम रहते हैं, that is called as the crust. So crust कहते हैं. This outer surface is called as the crust. जो ocean and continental crust होते हैं, उनमें दो part हो जाते हैं form the crust. Continental crust जो होते हैं वो generally older होते हैं oceanic crust से, और इनमें बहुत सारे plates होती हैं. जो earth है is not a complete, you can say it's a single piece. जो earth है, outermost layer of the earth है, that is not in a single piece, that is fragmented. और each fragment जो होता है, that is called as a plate. और ये जो plates होती हैं, they are in continuous motion, सारे time move करती रहती हैं. आपने जिक्सॉ पजल देखा हुआ है, आप लोग यूज भी करते हो पजल को, है ना? तो पजल में आप एक एक ब्लॉक को मूव करते रहते हो. तो कुछ ऐसी ही अर्थ की प्लेट्स हैं, अर्थ के फ्रैगमेंट्स हैं जो मूव करते रहते हैं. अब कई बार कैसे होता है जिक्सॉ पजल में, जब आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को मूव कर रहे हो तो वो इट ब्रश पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के साथ टच करते हुए पास करता है. या कई बार ऐसे भी होता है कि उसमें एक दूसरे में फंस जाते हैं, ब्लॉक्स फंस जाते हैं, राइट? इसी तरह से प्लेट्स में भी होता है. तो if you have to know this how this is occurring, तो ये plates हैं, these are the different fragments or plates. So sometimes they are continuous in motion और sometimes they are brushing past each other, जैसे कि इस फिगर में है, they are brushing past each other, एक दूसरे को स्लाइड करते हुए निकल जा रहे हैं. ऐसे ही कुछ आप जिक्सॉ पजल में भी देखते हो, राइट? और कई बार वो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने से मूव करेंगे, ठीक है, उनके बीच में कोलिजन होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, तो इससे डिस्टर्बेंस होगी अर्थ क्रस्ट में, और ये डिस्टर्बेंस शो अप होती है एज अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर. एंड although we are not very we know for sure that what causes earthquake, but it is not possible to predict when and where the next earthquake might occur. समझ आ रही बात? earthquakes जो होते हैं, they are caused by, we know it now, earthquake can be caused by the movement of plates. और ये जो boundaries है ना, these boundaries of the plates, वो weak zones हैं. They are the weak zones where earthquakes are most likely to occur. ये देखिए यहाँ पर, जहाँ पर ये एक दूसरे को meet कर रही है ना, ये जो ये दिखा रहे हैं, these are the weak zones. इन weak zones को हम
सेस्मिक जोन्स या फॉल्ट जोन्स भी कहते हैं। ये वो रीजन्स हैं जहां पर अर्थक्वेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। समझ आ रही बात? इनको हम सेस्मिक या फॉल्ट जोन्स कहते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे थ्रेटेंड एरियाज हैं, जैसे कश्मीर हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हो गया, नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इट इज वेरी मच प्रोन टू अर्थक्वेक्स। रन ऑफ कच्छ, गुजरात रीजन, राजस्थान, इंडो गेंजेटिक प्लेन, इसीलिए हम लोग वो वी आर इन इंडो गेंजेटिक प्लेन, तो हम लोग दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज, उत्तरांचल, उत्तराखंड, तो ये हम लोग इन वी ऑल्सो एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस। हम लोग सभी डेंजर जोन में फॉल करते हैं। सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया आर ऑल्सो इन दैट डेंजर जोन। अब हाउ डू यू मेजर द earthquake? Earthquake जो है it is expressed in terms of a magnitude on a scale which is termed as Richter scale. This Richter scale अगर हम समझेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्टर स्केल जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट होता है, एंड इट इज नॉट अ लीनियर स्केल, मेनी टाइम्स इसका इफेक्ट होता है। अगर तो लेस देन 3.4 है तो जस्ट डिटेक्टेबल ऑन सेस्मोग्राफ। अगर कोई अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 3.4 है या उससे कम है तो वो जस्ट डिटेक्ट होता है सेस्मोग्राफ में। सेस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज रिकॉर्डिंग दीज earthquake, seismic waves को record करता है। You have a picture in your book on page number 194. उसमें seismograph दिया हुआ है। It has got a pen and a moving, rotating drum, और उसके ऊपर पेपर एक इंस्टॉल्ड है या उसके ऊपर लगा हुआ है, जिसके ऊपर वो पेन जो है, मेटेलिक पेन, इट कीप्स ऑन मूविंग एंड कीप्स ऑन रिकॉर्डिंग द मूवमेंट्स। अब ये रिकॉर्डेड जो मूवमेंट्स होती हैं ये अर्थ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मोशन है अर्थ के प्लेट्स की, तो ये हमेशा ये ग्राफ जो है बनता रहता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रैंडम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई पीक्स शो करता है जब अर्थक्वेक आता है। तो इसकी स्टडी से दे कैन अंडरस्टैंड कि किस रीजन में जब अर्थक्वेक अकर होता है तो ये कैसा, हाउ इज इट डिपिक्टेड इन द ग्राफ। सो इफ इट इज magnitude of the earthquake is less than 3.4, then it is just detectable on the seismograph. लेकिन अगर up to 4.2 है तो वो थोड़ा सा इंडोर्स नोट डाउन हो जाता है। अगर 4.8 तक है तो ये हमारे डोर्स एंड विंडोज जो होते हैं वो आवाज करने कर लग जाते हैं, रैटल करते हैं, इतना ज्यादा इफेक्ट होता है उसका। अगर अप टू 6.1 है इट मे कॉज सम अमाउंट ऑफ इवन डैमेज। अगर 7.3 तक है तो सीरियस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अप टू 9 पहुंच गया तो इट हैज वेरी वेरी डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स, मे बी सुनामी ऑल्सो if it is occurring somewhere near the seashore. So जितना रिक्टर स्केल के ऊपर इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा उसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा। Now it's not that we cannot predict earthquake. साइक्लोन्स हम कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर लेते हैं, बहुत हद तक हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। टू अ लार्ज एक्सटेंट वी कैन प्रेडिक्ट व्हेन द साइक्लोन्स आर गोइंग टू कम। थंडरस्टॉर्म से भी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, but earthquake is still one such phenomenon which cannot be predicted. We are only reached to a point that where are the danger zones, where are the fault zones, where are the regions where there are more chances of getting this earthquake. So जो रीजन्स जहाँ पर की अर्थक्वेक्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं, अर्थक्वेक्स प्रोन है, वहाँ पर हमें बिल्डिंग्स ही ऐसी कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए जो कि अर्थक्वेक प्रोन हो। In many big cities now it has been made mandatory to make the big high-rise buildings earthquake prone, earthquake proof. Houses should be made of mud or timber, not concrete. जहाँ पर earthquakes बहुत ज़्यादा आने के chances हैं वहाँ पर houses जो हैं वो mud या timber से बनने चाहिए, लकड़ी से बनने चाहिए, not with concrete, because concrete can cause lot of damage.
इवन रूफ जो होती है इट इज मेड अप ऑफ सम लाइटर मटेरियल. जो कपबोर्ड्स होते हैं, शेल्व्स होती हैं, दैट शुड बी अटैच्ड टू द वॉल्स and so that they do not fall in case of earthquake. In case there is an earthquake and you are still inside the house, it is always better to take shelter under the table. Table के नीचे आपको छुप जाना है, away from tall and heavy objects. If you're on bed, keep a pillow over your head so that you can protect your head. If you protect your head, the other damages can be managed, but not your head. If you're outside and earthquake occurs, move away from high-rise buildings, trees, power lines, because ये सब के सब गिर के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. You have to drop to the ground. In case you are at home, turn off cooking gas connection from the cylinder. Switch off the lights. Unnecessary जो connections हैं उनको आप switch off कर देंगे. So this is the way you can take precautions, because you should know that how it is occurring. From this figure, it is very, very clear that earthquake जो होता है, it is the region where it starts deep inside the earth is called as focus, or directly above, vertically above on the surface of the earth where the impact of this earthquake is maximum, उसको कहते हैं epicenter. और epicenter के ऊपर ये देखिए epicenter, और ये focus है, it is deep inside the earth. ये this focus में यहाँ पर start होगा, यही वो region है जहाँ tectonic plates या जो earth की plates हैं, जो fragmented pieces हैं, जिनको हम plates कहते हैं, tectonic plates कहते हैं, they are moving continuously. और जब ये move कर रहे हैं, they brush past each other or they get stuck with each other. तो जब वो अपने आप को उससे अनलॉक करेंगे, कभी लॉक हो जाती हैं ये प्लेट्स, जब वो अनलॉक करेंगे सो इट विल create a disturbance, and this is the region, the focus region, where it starts. All right, and vertically above, and ये जो यहाँ पर जो start होगा वो it will be generated in the form of, ये जो tremors होंगे, disturbance होगा, it will be generated in the form of waves. अब ये वेव्स जो हैं उनको हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं, और ये एपी सेंटर्स में इस तरह की अपीयर होती हैं. तो जितना एपी सेंटर, जो रीजन एपी सेंटर है वहां मैक्सिमम डैमेज होगा, और जितना आप एपी सेंटर से दूर जा रहे हैं ये इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स, लेकिन उसका इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा. मतलब यहाँ जो रिक्टर स्केल के ऊपर recorded होगा magnitude of the earthquake, that will be much higher when compared to the magnitude of earthquake which is recorded at this region away from the epicenter. The more you are away from the epicenter, the effect of the earthquake is dying down, क्योंकि वहां पर seismic waves जो हैं उनका इफेक्ट कम होता जा रहा है एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द एपीसेंटर. लेकिन एपीसेंटर जो है इट इज डायरेक्टली अबव द फोकस, वर्टिकली अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेयर द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज मैक्सिमम. और इसीलिए अगर आप इफ यू फॉलो न्यूज एंड यू हियर व्हेनेवर दे रिपोर्ट अबाउट एन अर्थक्वेक, they always tell the epicenter is that particular region, and there it was recorded that it is somewhere around 3, 4, 5. and अगर हमें इफेक्ट उसका earthquake का इफेक्ट हमें जरा सा फील हुआ, we just felt कि something moved below our feet, तो इसका मतलब कि उसका इफेक्ट बहुत कम है, डाई डाउन हो गया, क्योंकि एपीसेंटर से हम काफी दूर है. लेकिन अगर एपीसेंटर हमारे बहुत पास होगा तो इफेक्ट विल बी मच मोर and the destruction also would be greater. All right, now that is all